ब्रदर अभिषेक के द्वारा उनके बारे में सुनती हूँ, बट आई थैंक गॉड कि हमें प्रिविलेज मिला सर और मैम की आज हमारे बीच में है। तो मैं चाहूँगी हम जोरदार तालियों से डॉक्टर BK संजय जी का वेलकम करेंगे। ताली बजाएंगे और मैम का वेलकम करेंगे। मैं थोड़ा सा सर आप लोगों को देना चाहूँगी। और सर एक जाने माने रिनाउंड ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं और सर देहरादून से ही हैं। इन्होंने बहुत सारी मेडिकल और सोशल सर्विसेज में क्या करा है, प्रोग्रामिंग में लेकर आए हैं। एंड आई थैंक गॉड फॉर दिस डे दैट सर इज बिटवीन अस एंड वी कीप हियरिंग अबाउट, आई स्पेशली कीप ऑन हियरिंग फ्रॉम Abhishek, and sir, we are really delighted and honored to have both of you, and it's a privilege to have you in this place, and we thank God for this time. And I would like to also share some things about sir, that he has given his distinguished medical and social services to the public by saving hundreds of lives and limbs inflicted with trauma and tumors, whose name has been recorded in Guinness Book of World Record and also in Limca Book of World Record. Thank God for such a beautiful life. इतना खूबसूरत जीवन है जो इतने लोग हैं जीवनों में क्या कर रहा है, काम बहुत आयत से कर रहा है। एंड सर जो है 31 अगस्त की सर की पैदाइश है और बेसिकली सर ने जो भी ऑर्थोपेडिक एजुकेशन है, ट्रेनिंग है, सर ने इंडिया से ही गेन करी है। एंड ऑल्सो सर हैज ट्रैवल्ड अब्रॉड फॉर वेरियस फेलोशिप्स and he has done his MBBS from GSPA Medical College Kanpur in 1980. So we are glad to have such good medical doctors in our country who are serving diligently. So we thank for each and everything. And I also want to introduce sir is MS Orthopedic from PGI Chandigarh in 1986, senior residency from Central Institution of Orthopedics, Safdarjung Hospital, New Delhi. And I also want to introduce, in past sir has worked as an associate professor in PGI Chandigarh as well, and professor and head of department in Himalayan Institute, Jolly Grant. He has presented more than 1,000 papers in various national and international journals like Journal of Bone and Joint Surgery and various other journals as well. So we are really delighted and glad to have sir. And I also want to inform everybody who is sitting here that he is organizing an Indian Orthopedic Association National Board and Joint Week every year and giving free consultation, surgery to poor and needy, awareness program through radio, TV and print media during a week-long program. He is giving free orthopedic consultation to BPL card holders on every Saturday. तो ऐसे खूबसूरत जीवन जब लोगों के जीवन में क्या करते हैं, बोलते हैं, तो परमेश्वर क्या देता है, पता है कि आशीष देता है। And he is also spreading awareness about health-related social issues and distributing a free monthly health post paper to the patients for last more than 5 years. And besides medical writings, he has written hundreds of accident-related articles, including 80 guest columns in one of the leading English newspaper. And I also want to mention that Dr. Sanjay presented the first copy of his first poetry book. तो जो सर ने एक पोएट्री बुक लिखा है जिसका नाम है उपहार संदेश का, और which was presented to the Honorable Vice President of India, Shri M. Venkaiah Naidu, which is published by Bharatiya Janipan. And the message that Dr. Sanjay, which he has given, so we just want to celebrate his life, and I want to thank you, sir, and I want to welcome once again. हम ताली स्वागत करेंगे और आपका प्रोग्राम हमने ऑर्गेनाइज करा है न्यूट्री फैमिली सेंटर राजपुर देहरादून की ओर से, आपको बहुत आयत से अच्छा लगेगा। We would like to have you over again and again. अब मैं बुलाना चाहूँगी हमारी वर्शिप टीम को आगे आए और हमारा आराधना में आगे बढ़े। आज के दिन यीशु मसीह का जन्मदिन पूरी दुनिया में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। शुरुआत तो इसकी जापान से हो जाती है और अंत इसका अमेरिका में होता है, क्योंकि हम लोग तो अभी भी समय से पहले, यदि आप किसी अपने परिचित को अमेरिका या कनाडा में बात करेंगे तो अभी उनके यहाँ ई भी है, कम से कम 12 घंटे का अंतर रहता है। आप सभी लोगों को मेरी क्रिसमस एवं नव वर्ष की अग्रिम शुभकामनाएं। आपके निमंत्रण के लिए आपके विक्ट्री क्लब फैमिली सेंटर की
पादरी आकांक्षा दास और चर्च के सभी अन्य पदाधिकारियों का मैं आभार प्रकट करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ। यहाँ पर लाने में जिन्होंने सूत्रधार का काम किया वो हमारे स्टाफ अभिषेक हैं और उनकी धर्मपत्नी रीना है। खास तौर से मेरी धर्मपत्नी यहाँ आई हुई है, वो मेरे कहने से नहीं आई है, ना मेरे निमंत्रण से आई हुई है, बल्कि उनका कहना है कि रीना आई थी तो मैं जरूर चलूँगी, इसलिए वो यहाँ पर आई है। इसलिए मैं व्यक्तिगत तौर पर दोनों लोगों का बड़ा आभारी हूँ और धन्यवाद देता हूँ। खास तौर से इस बात के लिए कि मैं यहाँ पर अभिषेक के कारण और रीना के कारण मेरा आप सब लोगों से परिचय हो सका। ईसा मसीह इस दुनिया के कुछ इंसानों में से एक थे जिनको सच्चे मायने में परमेश्वर का दर्जा दिया गया, और आज हम सब लोगों को संकल्प लेना चाहिए कि सब हम उनके बताए हुए रास्ते पर चलें, और जिस ढंग से उन्होंने मानवता की सेवा को, हम सब लोगों को उतना करने की सामर्थ्य तो नहीं है, लेकिन हम सबको भी अपने सामर्थ्य के अनुसार मानवता की सेवा करनी चाहिए। मानवता की सेवा करना ही हम सब लोगों का धर्म और कर्म होना चाहिए, जिसको क्रिश्चियनिटी ने अपने सेवा के कार्यों से पूरी दुनिया में साबित कर दिया। यहाँ पर मैं एक बात और बताना चाहूँगा कि क्रिश्चियनिटी के आने के बाद भारत की व्यवस्था के ऊपर एक कार्य से इतना असर पड़ा कि भारत में हजारों सालों से चली आ रही रूढ़वादी व्यवस्था में मूल चूक परिवर्तन हुआ। मैं आपको थोड़ा समय दूंगा और आप सोच सके, और नहीं सोच सके तो मैं आपको यह बताता हूं। यह मूल चूक परिवर्तन हुआ क्या? वो हुआ है शिक्षा की व्यवस्था में परिवर्तन, जिसके ऊपर कुछ पहले, यहाँ क्रिश्चियनिटी आने के पहले शिक्षा का प्रचार प्रसार केवल कुछ लोगों के लिए था। पहले तो शिक्षा ही किसी को नहीं मिलती थी, और खास तौर से महिलाओं को तो शिक्षा का कोई मतलब ही नहीं था, चाहे वो राजा की रानी ही क्यों ना हो या पुरोहित की पत्नी ही क्यों ना हो। तो ये मैं सबसे बड़ा योगदान मानता हूं। मेरा भी मानना है कि शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जो कि किसी भी व्यक्ति के स्तर में बदलाव ला सकता है। जैसा कि अभी पास्टर ने कहा, ग्लूम टू ग्लोरी, डार्कनेस टू लाइट, और हमारे हिंदी के शास्त्रों में लिखा हुआ है, संस्कृत में तमसो मां ज्योतिर्गमय। यदि आप किसी भी इस तरह की व्यवस्था का, कभी भी किसी कार्यक्रम का आरंभ होता है तो सिर्फ दीप प्रज्वलित करके ही किया जाता है या कैंडल जला के किया जाता है, उसका अर्थ सिर्फ यही है, तमसो मां ज्योतिर्गमय या ग्लूम टू ग्लोरी। यहाँ पर आए हुए खास तौर से बच्चों से अपील है कि वह ज्यादा से ज्यादा समय अपने पढ़ाई और लिखाई पर लगाएं, क्योंकि जिससे न केवल शिक्षा से असर क्या पड़ता है, आप देखिए जिसके कारण आप यहाँ पे बैठे हुए, शिक्षा जो है हमारे जो दिमाग है उसका होराइजन बढ़ा देती है। और होराइजन का मतलब आप समझें कि जो क्षितिज होता है, जैसे हम यहाँ पे आप खड़े हैं तो हमें सिर्फ इस कमरे के अंदर ही दिख रहा है। यदि हम थोड़ा सा बाहर निकल जाएं तो शायद हमें देहरादून पता दिखने लगेगा, और थोड़ी ऊंचाई पे चले जाएं तो हमें मसूरी भी लगने लगेगी। लेकिन यदि हम उससे भी पीछे पहुंच जाए तो हमें शायद लगता है धनौल्टी भी पहुंच जाए, और एवरेस्ट पे पहुंच जाएंगे हिमालय पे तो शायद पूरी दुनिया दिखने लगी। ये है शिक्षा का महत्व, क्योंकि जिनके जो लोग शिक्षित नहीं होते हैं वो सिर्फ कूप मंडूक ही रहते हैं, और जैसे कि आपने कहा वो इसका मतलब ही नहीं समझ सकते कि व्हाट इज ग्लूम टू ग्लोरी, व्हाट इज द डार्कनेस टू लाइट, एंड व्हाट इज द तमसो मां ज्योतिर्गमय। आपने बहुत, पास्टर जी ने बहुत अच्छे शब्दों में कहा, और उसको मैं फिर दोहराऊंगा कि जब आप अंधेरे में होते हैं तो क्या किसी को देख सकते हैं? क्या कोई आपके पास ऐसी कोई युक्ति है जिससे आप अंधेरे में खड्ड में गिरने से बच जाएं? या उस अंधेरे में सोना या चांदी या कोई महंगी से महंगी चीज भी पड़ी है तो उसको हम पकड़ लें? नहीं, कोई नहीं। ये सिर्फ लाइट है
जिसका हमारे जीवन में बड़ा योगदान है। और शिक्षा जो है आपके लाइफ के होराइजन को बढ़ाती है, जिससे आप दुनिया को बहुत अच्छे ढंग से देख लेते हैं। मैं क्रिसमस के माध्यम से मुझे खास तौर से बच्चों ने जो पहले जो नृत्य किया था या जो डांस किया था, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं अपनी संस्था की तरफ से उन बच्चों को कुछ प्रोत्साहन राशि देना चाहता हूँ। और ये हमने हिंदी में पोएट्री की बुक लिखी हुई है, और जो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ इस कविता के माध्यम से ही देना चाहता हूँ। इस पुस्तक की आखिरी कविता है जिसका शीर्षक है सपने हमारे और आपके। मैं आपको सुनाऊंगा और आप समझिए इससे केवल ये सपने हमारे नहीं हैं, ये सब आपके भी हैं और सब हम लोग यहाँ पे बैठे हुए उन सब के। यह कविता क्रिया नहीं बल्कि प्रतिक्रिया है। एक कवि कहते हैं कैसे कटती उनकी रातें जो सपने नहीं देखते। मैं कहता हूं कैसे कटते उनके दिन जो सपने नहीं देखते। एक कवि कहते हैं कैसे कटती हैं उनकी रातें जो सपने नहीं देखते। मैं कहता हूं कैसे कटते उनके दिन जो सपने नहीं देखते। सपनों को देखना सीखो, रात के नहीं बल्कि दिन के भी। रात के सपने तो अनायास आ जाते हैं, लेकिन दिन के सपनों को तो बुलाना पड़ता है। रात के सपने कम ही पूरे होते हैं, दिन के अधिकांशतः। कभी कहते हैं सपने होते हैं आकाश की तरह अनंत, क्षितिज की तरह अजनबी। मैं कहता हूं अनंत को भी तो नापा जा सकता है, जैसा हमारे वैज्ञानिकों ने नापा और पहुंच गए मंगल पर। अजनबी को भी तो बनाया जा सकता है अपना, जैसे हमारे पूर्वजों ने बनाया। हम सब की तरह वह भी तो मिलने से पहले अजनबी ही रहे होंगे, लेकिन मिलने के बाद मंत्र दिया वसुदेव कुटुंबकम, जिसका मतलब है पूरी दुनिया एक परिवार है। कहते हैं वे अपने सपने बेच दो, उनकी तरह मैं भी परेशान हूँ, क्या खरीदूंगा अपने सपने बेचकर। सपने ही तो सच्चे होते अपने होते हैं, यदि सपने ही बेच दिया तो बचेगा क्या जीवन। सपने ही तो सच्चे होते हैं अपने होते हैं, यदि सपने ही बेच दिए तो बचेगा ही क्या जीवन में। सपने ही तो आधार हैं हमारे आपके जीवन के। सपने ही तो आधार हैं हमारे आपके जीवन के। इन सपनों की नींव पर तो आज यह इमारत खड़ी है हमारी और आपकी। जैसे जैसे सपने बढ़ते हैं वैसे वैसे जीवन बढ़ता है। मैं तो कहूंगा सपनों को बुनो, पालो, पोसो, बढ़ाओ अपनी पूरी लगन और मेहनत से। जैसे जैसे सपने बढ़ते हैं वैसे वैसे जीवन बढ़ता है। मैं तो कहूंगा सपनों को बुनो, पालो, पोसो, बढ़ाओ अपनी पूरी लगन और मेहनत से। सपने ही तो भविष्य है, सपने ही तो भविष्य है हमारा आपका। हाँ, अपने सपनों को पूरा करने के लिए दूसरों का सहयोग लो और दूसरों के सपनों को पूरा करने के लिए अपना सहयोग दो, क्योंकि जीवन का आधार ही है सहयोग। क्योंकि जीवन का आधार ही है सहयोग। सहयोग के बिना हम सबकी उत्पत्ति नहीं हुई। सहयोग के बिना हम सबकी उत्पत्ति नहीं हुई होती, ना ही होता इतना विकास एवं विस्तार। आज यहाँ जो पूरा हो रहा ये सपना ही तो था और क्या। हमारे सपनों को संवारने के लिए आपको धन्यवाद और आपके सपनों को संवारने के लिए हमारी शुभकामनाएं। अंत में मैं आपके विक्ट्री फैमिली सेंटर को धन्यवाद देता हूं और फिर एक बार पुनः आप सब लोगों को मैरी क्रिसमस एंड हैप्पी न्यू ईयर। नमस्कार। थैंक यू सर इतने अच्छे इंकरेजमेंट के लिए। एंड आई एम श्योर सबने बहुत ध्यान से सुना है। एंड वंस अगेन हम बहुत आभारी हैं कि आपने समय निकाला और आप नाम के साथ आए। एंड वी आर रियली ग्रेटफुल टू दैट हियर। और आने वाले समय में हम चाहेंगे कि आप बराबर हमसे संपर्क में रहें। और बहुत अच्छी रही आपकी उपस्थिति और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारे बीच में आप आ पाए। एंड हम फिर से बस आपका थैंक्स करना चाहते हैं सर, इतना इनकरेजमेंट के लिए हमारे लिए स्पेशली। और इतने अच्छे से आपने दोबारा से ज्योति को एक बारी मतलब एक्सप्लेन करा और एजुकेशन को आपने हाईलाइट करा, जिसपे हम लोग बच्चों के बीच में वर्क करते हैं। मैं आपका बहुत बहुत थैंक्स करना चाहती हूँ। और आने वाले समय में मेरा ये विश्वास है कि हम लोग कनेक्टेड रहेंगे और आप हमारे बीच में आते जाते रहेंगे ऐसे ही। थैंक यू। मैं आपने जो कहा मैं उसमें एक बात ये जोड़ना चाहता हूँ। मेरा अपना मानना है और मैं बहुत लोगों को मैंने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को भी कहा हुआ, आत्मनिर्भर भारत का सपना
केवल तभी पूरा होगा जब हम सबको भोजन मिले, शिक्षा मिले, स्वास्थ्य मिले और अच्छा मिले और सस्ता मिले। मैं आपके लिए पुस्तक भेंट करना चाहता हूँ और आप आगे आ जाएंगे तो बहुत अच्छा। मुझे पूरा भरोसा है कि आप